Hello dear students, in continuation to the consignment account, the chapter which we have been doing, I will be taking further queries, resolutions of various important points which are in your consignment chapter. First thing which we discussed in the last class, that was adding the IP. IP refers to we do want to make the cost into the IP so that our consignee would not come to know how much price I am asking him to sell, what is my cost, so that he would not like to ask the more profits from me. So in case how to make IP, there are fundamental is if it is given 25% on cost. If it is given on cost, so we have to assume the cost as 100. So fundamental is 25% or any percent on whatever it is given, like it is given on cost. So we will say 100 ka 25, that is called 25 is profit. So what will be your IP? 125. So the relation of your IP profit with regard to cost is 1/4, and with regard to your IP it is 1/5. So depending upon the total cost, you will be able to calculate. If it is given 25% of IP, so here it is given IP, so assume IP as 100. So 25% is 25 profit. So now if it is IP, you have to reach to cost, so you will go for minus. So cost will be 75. So the relationship is with IP it is 1/4 and with cost it is 1/3. So there are 4 conditions with the which you are able to calculate this way the relationships of IP. So today I am going to take, last class we took 20th question of final touch book. Today we are going to take 21st question of your final touch book. I will be picking up only the fundamental, because you know how to drive a car, you know how to go for consignment account. So only the difficult point will be discussed in this lecture. So in 21 he says 1 lakh rupees cost thi. Invoice was made pro forma as to show a profit of 25% on cost. So ये वाला point लागू होगा 25% on cost. So if you check out, a profit will be 25 and IP will be 125. Now you have in your question 1 lakh has a cost. So cost is your 1 lakh. So profit will be 25%. So 25,000. So what is your IP? 1,25,000 is your IP. So when you will put it on consignment account, you will put it like this: 125 this side and cancellation of IP 25 is this side. This is one point. It is in your 21 question. Second point, it says Rao sold part of consignment for 88,000 at uniform price of 10% over price. It means over price किसका? 10% of IP का, और वो सेल प्राइस कितना है? 88,000 है. So 88,000 is your sale price. Now it says that this 88,000 is 10% above IP. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? वो कहते हैं जी IP is 125, तो इसका हम 10% ले लेते हैं. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये 21, 25, 100 और 25 ये था जब हम इसका रिलेशन निकाल रहे थे प्रॉफिट के साथ, इसकी कैंसलेशन करने के लिए. ये इसलिए कैलकुलेट किया गया था, जो इसका बेसिस था कॉस्ट, तो उसको मैंने 100 माना था. सो आपने अब वही वाली चीज़ को यहाँ नहीं लेके जाना. अगर आप ऐसा करोगे सो यू विल बी गोइंग फॉर अ मिस्टेक. वो मिस्टेक क्यों होगी? क्योंकि उसने बोला 10% ओवर एंड अबव ऑफ IP. अब IP 125 नहीं है, हमें नहीं पता IP कितना है. उसने हमें बोला कि 25% ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नो कॉस्ट. सो हमने क्या किया, वी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए वी बिलीव्ड कॉस्ट टू बी 100. सो मेक माई पॉइंट, कॉस्ट इज नॉट 100.
बट फॉर सेक ऑफ मेकिंग अ कैलकुलेशन हमने 100 माना, 125 निकाला. सो द रिलेशन इज 1/4 एंड 1/5. सो डू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन पर्टिकुलर. यहाँ पर मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि अब मैं सेकेंड पॉइंट लेने जा रहा हूँ. अब वो कहता 10% अबव IP. तो अब मुझे IP भी नहीं पता, क्योंकि IP 125 नहीं है, एज आई हैव स्टेटेड यू अर्लियर. सो फिर IP कितना है, नोबडी नोज. तो वो बोलता है जी 10% अबव IP है. तो हम क्या करते हैं, हम IP को अब क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे. 10% अबव, 100 का 10% 10 होता है. इसका मतलब ये कितने में सेल करी होगी, 110 में सेल करी होगी. सो अगर टोटल सेल्स हमारी 88,000 हैं, तो इसका जो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव IP है वो कितना होगा, सॉरी 110. सो इट इज़ 8,000. इसका मतलब IP पे जो सेल्स हैं वो कितनी हैं, 80,000 की हैं. अब मुझे IP पे सेल्स क्यों निकालनी पड़ी, द रीज़न बिहाइंड आई नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. सो मेरे पास 125 वैल्यू का क्लोजिंग गुड सोल्ड है, 80,000 की मेरी सेल्स हुई. सो द बैलेंस इज 45,000 विच इज माई क्लोजिंग स्टॉक. इसमें मैं ऐड कर दूंगा एक्सपेंसेस एंड देन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट माई क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. आई रिपीट, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप क्या करो कि आप इसको मान लो कि ये 125 प्राइस है. नो, 125 इज नॉट द प्राइस. ये तो परसेंटेज दिया था, बेसिस निकाला, सो दैट वट एवर विल इट बी द प्राइस, क्योंकि बेसिस परसेंटेज से निकलता है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. अब यहाँ पर भी वही था, 10% अबव IP. कितना भी IP हो, 10%, परसेंट से वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे 100 मान लिया. तो रिलेशनशिप विद IP जो भी होगा वो 10/110 होगा. तो उसको मैंने फिर 88 लेकर के, क्योंकि 88 क्यों लिया, क्योंकि वो वैल्यू गिवन है. तो वैल्यू गिवन हो तो प्राइस कोई भी हो, 200 होगा तो डिवाइड करके यूनिट्स आ जाएंगी. तो वैल्यू का मतलब था, तो वैल्यू से हमने निकाल के IP निकाला. क्यों निकाला IP, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. अब इसके बाद आपके जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसके अंदर हमने 21 क्वेश्चन के बाद 22 क्वेश्चन आता है. इसके अंदर हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि ईच मशीन का प्राइस था 112 बट इनवॉइस एट 25% अबव कॉस्ट. अब फिर अबव कॉस्ट आ गया, 25% अबव कॉस्ट, तो IP क्या बन गया, 125. तो रिलेशन क्या है, 1/4. अब हमारे पास एक गुड की कीमत दी हुई है, कितनी है, 112. अब इसमें IP कितना होगा, इसका 1/4 कर लो. सो 4 2s are 8, 3 4 8s are, sorry 4 2s are 8, so 28 rupees. So what is the IP, 112 is cost, profit is 28. So what is your IP, that is called 140. अब यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, सो आपने पर यूनिट के हिसाब से कर लिया. 21 क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी तो हमने वैल्यू के हिसाब से कर लिया. इसके आगे जो एबनॉर्मल लॉस वाला, डिफेक्टिव पॉइंट्स वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड 23 क्वेश्चन. ये मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहा हूँ, बी विद मी. इट्स इज आर ऑफ रोहतांग कंसाइंड 100 केसेस ऑफ मेडिसिन कॉस्टिंग, अब देखो कॉस्ट लिखा हुआ है 1000 पर केस टू कैटरीना ऑफ कोटा एट 1/1/2007. आगे क्या बोलता है, गुड्स वर सोल्ड एट 25% अबव कॉस्ट. कहता है गुड्स को जो सेल करना है वो 25% अबव कॉस्ट सेल करना है. सो अगर वो 25% अबव हम कॉस्ट सेल करेंगे और अगर वैल्यू माने कि वो 100 की है तो वो 125 हो जाएगा. रिलेशन वही आ जाएगा, 25% अबव कॉस्ट. सो कॉस्ट इज 100, 25, सो 125 इज योर IP. अगर हमें पर यूनिट नहीं पता, यहाँ पर वो बता रहा है केस इज 100 है, ईच की कॉस्ट कितनी है, 1000 है, बेचना कितने पे है, 25% अबव कॉस्ट से बेचना है. 25% अबव कॉस्ट होगा तो 1000 एक की कॉस्ट है, 25% हो गया 250. सो एक केस कितने का बेचना है, 1250 का. फिर ये बोलता है, कहता है एनी डेफिशिएंसी इन सेलिंग प्राइस. अब कहता है डेफिशिएंसी इन सेलिंग प्राइस क्या होता है, मतलब
1250 से अगर आप नीचे बेचते हो तो वो डेफिशिएंसी होती है। He is saying any deficiency in selling price was to be borne by Katrina. Katrina कौन है? कंसाइनी। So इसका मतलब है अगर कोई भी कॉस्ट, कोई भी यूनिट इतने अमाउंट से नीचे पे सेल होती है तो उसको कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। तो कंसाइनी को उतना पैसा किसको देना है? कंसाइनर को देना है। डेफिशिएंसी इन सेलिंग प्राइस वाज टू बी बोर्न बाय कैटरीना। Katrina was, however, entitled to a special commission at the rate of 25% of any surplus price realized, overriding commission जो भी होगा वो उसको दे दिया जाएगा। She was further entitled to a ordinary commission 5%, del credit 2.5%। तो ये हम सब जानते हैं। आगे खर्चे हैं, इसमें मेन जो चीज़ है कहता दी अकाउंट सेल्स रिसीव्ड ऑन 30 जून रिवील्ड द फॉलोइंग। उसने 40 केस बेचे 1500 के हिसाब से। 40 केस 1500 के हिसाब से हो गया तो ये हमारा 60,000 हो गया। फिर उसने क्या किया? 30 केस बेचे 1200 के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड 36,000। फिर उसने क्या किया? 10 केसेस बेचे हैं 1300 के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड 13,000। हियर द पर्टिनेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि कोई ऐसा है जो 1250 से नीचे बेचा है? यस। कौन से वाला है? दैट इज कॉल्ड सेकंड वाला। क्योंकि मिनिमम इज आईपी, अगर आईपी से मिनिमम कुछ भी होता है तो वो कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। तो 50 रुपये, देखो 1200 पे बेचा, बेचना कितने में था? 1250 पे। सो 50 रुपये कम पे बेचा, 30 इंटू 50, 1500 रुपये। हु इज गोइंग टू बियर? कंसाइनी। किसको देगा ये कंसाइनी? कंसाइनी को, अपने जेब से बियर करेगा। ऑन दी अदर हैंड उसको ज़्यादा पे बेचने पे कमीशन मिलना है 25%। ज़्यादा कितना? देखिए 1500 पे बेचना था 1250 पे, 250 एक्स्ट्रा हो गया। सो 250 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10,000 ये ओवर प्राइस है, 1300 है, यहाँ 1250 है, 50 से ये हो गया। सो इंटू 50 तो ये कितना हो गया? 500 हो गया। सो टोटल 10,500 जो है वो इसका एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, जिसके ऊपर उसे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कौन सा कमीशन मिलेगा? ओवरराइडिंग। अब वो कमीशन कितना है? 25% है। सो 25% ऑफ दिस, तो 10,000 का 25% बनता है 2500, 500 का 25% बनेगा 125। सो द ओवरराइडिंग कमीशन इज 26,250। सिंपल कमीशन आप जानते हैं कैसे निकलता है, डेल क्रेडिटर जानते हैं कैसे निकलता है। देखिए सिंपल कैसे निकालेंगे? 96 ये 639 1,09,000 हो गया। इसका सिंपल कमीशन वो कितना बोलता है? 5%। डेल क्रेडिटर कितना बोलता है? 2.5। दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं, 7.5% बना देते हैं। तो 1 लाख का 7.5% इज 7,500। 9,000 का 7.5% हम देख लेते हैं। सो इट विल बी योर 78175 बोल रहा है तो 625 आ जाएगा। सो टोटल इज 8175। कैलकुलेशन में हो गया थोड़ा सा, तो 8175 प्लस 2625 ये जोड़ लीजिए, 2625 टोटल कम्स आउट टू बी 10800। अब कहता है कि ये जो हमारा है बन गया 10,800, बट इसमें से 2,000 कौन देगा हमें? 2,000 हमें किसने देना है? कैटरीना ने देना है, कंसाइनी ने, क्योंकि ये डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी हमने कितने की निकाली थी? 1500 की। सो माइनस 1500, सो 003 9300 विल बी योर नेट कमीशन। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने कमीशन निकाला हुआ है 10,800, और ऑपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो कैटरीना से डेफिशिएंसी है वो 1500 की ली हुई है। सो व्हाट हैव दे डन हियर? दे हैव गॉन फॉर राइटिंग दिस 10,800 दिस साइड एंड 1500 दिस साइड। सो इस तरीके से इसने लिखा है। हमने क्या किया? नेट निकाल दिया, बिकॉज दिस होल इज रिलेटेड टू कमीशन ओनली। एक इसमें और पॉइंट है, 5 केसेस वर स्टोलन बाय अ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई। अब देखो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई ने किया हो, किसी ने किया हो, कौन सा लॉस है?
एबनॉर्मल लॉस है एंड दिस इज़ एबनॉर्मल लॉस, तो हम इसकी कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे एबनॉर्मल लॉस की करते हैं। उसके बाद बोलता है कॉम्पनसेशन किससे मिला, कैटरीना से। सो जो हम लॉस निकाल लेंगे उसमें से माइनस कर देंगे जो कैटरीना ने हमें कॉम्पनसेशन दी है 2000 रुपये की, और बैलेंस निकाल लेंगे। और अब एबनॉर्मल लॉस तो पूरा ही होता है, हमें पता ही है, तो हम इसको इधर ही लिख देंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे विद ₹2000। ऑल राइट, सो विद दिस आज हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 21, 22 एंड 23। थैंक यू वेरी मच।